It shows the relationship of each activity to others and to the whole project. Identifies precedence relationships. Precedence relationships का मतलब होता है कि एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है। सो हमने ये बताना होता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच में रिलेशनशिप क्या है। फिर प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि कौन सी एक्टिविटी पहले आएगी, कौन सी बात है। ठीक है, सो टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स रियलिस्टिक होने चाहिए। Scheduling techniques ensure that all activities are planned for, their order of performance is accounted for। ठीक है, एक्टिविटीज का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक्टिविटी टाइम के एस्टिमेट्स जो है दे शुड बी एक्यूरेट। हमने गांट चार्ट की एग्जांपल की थी। गांट चार्ट बेसिकली जस्ट शोज यू द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, सो डिजाइन एक्टिविटी है तो उस पर इतना टाइम लग रहा है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। नहीं, ठीक है, तो ये जो लेंथ ऑफ द येलो बार है, इट शोज कि कब प्रोजेक्ट शुरू है और कब खत्म हुआ है। ठीक है, सो इट स्टार्ट्स इन जनवरी एंड इन जून। फिर प्रोटोटाइप है, इट स्टार्ट्स इन मार्च एंड एंड्स इन अप्रैल। फिर टेस्ट की जो एक्टिविटी है, इट स्टार्ट्स इन अप्रैल एंड इन जून। फिर इसी तरह रिवाइज है, प्रोडक्शन। तो ये फॉर डेल्टा जेट एक एयरलाइंस है, उसका उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, Gantt chart। ठीक है, so these are the different kind of services which are provided, like passengers की services है, fueling है, baggage है, cargo and mail है, the galley servicing है, lavatory servicing, drinking water, cabin cleaning, cargo mail, flight services, operating crew वाला। ठीक है, उससे related different activities है। ठीक है, deep planning की activity में इतना time लगता है, it's shown by the blue bar। फिर baggage claim, फिर container offload है, फिर pumping activity में बहुत time लगता है। फिर आपका मेन केबिन डोर है। ठीक है, इसको मेंटेन करने में टाइम लगता है। फिर आफ्ट केबिन डोर है, फिर लोडिंग में फर्स्ट क्लास सेक्शन है, फिर कंटेनर बल्क लोडिंग है, फिर केबल चेक है, फिर एयरक्राफ्ट चेक है, लोडिंग है, बोर्डिंग है। फिर प्रोजेक्ट कंट्रोल रिपोर्ट्स होती हैं। कंट्रोलिंग स्टेज में भी प्रिपेयर प्रोजेक्ट कंट्रोल रिपोर्ट्स। ठीक है, उसमें डिटेल कॉस्ट ब्रेकडाउन होते हैं फॉर ईच टास्क। फिर लेबर कर्व्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स हैं। फिर फंक्शनल कॉस्ट एंड आवर समरीज है, फिर रॉ मटेरियल्स एंड एक्सपेंडिचर की फोरकास्ट है। फिर वेरियस रिपोर्ट्स होती हैं, टाइम एनालिसिस रिपोर्ट्स। We are more concerned with CPM technique over here. So PERT and CPM are basically scheduling techniques. They were developed in 1950s. CPM was developed by DuPont for chemical plants and PERT by Booz Allen and Hamilton with US Navy. So CPM जो develop की गई थी, it was by a person called DuPont. He worked for chemical plants. इसी तरह PERT भी एक technique है, इसको develop किया गया था। So they both consider precedence relationships and interdependencies, and each uses a different estimate of activity. Okay, so these are the basic 6 steps involved in PERT. Okay, we begin by defining the project and prepare the work breakdown structure. Then we develop relationships among the activities and decide which activities must proceed and which must follow. When we draw the network connecting all of the activities, then we assign time or cost estimates to each activity. Then we compute the longest time path through the network, which is called the critical path. Then we use the network to help plan how to schedule and control the project. So PERT and CPM, they can answer questions like when will the project be completed, what are the critical activities or tasks in the project. So which are the non-critical activities, which is the probability that the project will be completed by a specific date. Is the project on a schedule? Where is the money spent equal to, less than, or greater than? Are there enough resources available if the project must be finished in a shorter time? Okay, so these are the two types of diagrams. One is activity on node and activity on arrow. So activity on node basically shows the sequence of activities. ठीक है, so this is activity A, activity B and C. तो एक्टिविटी ए पहले आती है, उसके बाद बी आती है, फिर सी आती है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसी एक्टिविटी है, पहले आ रही, फिर बी आ रही, फिर सी आ रही। तो दीज आर टू डिफरेंट ways of showing the sequence of activities. एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम्स थोड़े से फर्क होते हैं फ्रॉम एक्टिविटी ऑन एरो। बोथ डायग्राम्स जो है बेसिकली दे शो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म इन अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ भी ए और बी पहले आते हैं, फिर सी आते हैं, सेम गोस हियर।
A and B पहले आते हैं फिर C बाद में आती है. So basically A and B should be completed first before we can start activity C. Okay, the same thing goes for here. A needs to be completed first before B and C begin. ये different और activities के examples दिए हैं. तो ये देख लें. Over here you can see कि B cannot begin before A is completed. इसी तरह C cannot begin before A is completed. D cannot begin before B and C are completed. Okay. ठीक है, तो एक्टिविटी और एरो डायग्राम्स अक्सर ये डमी एक्टिविटीज. तो इसका मकसद ये होता है जस्ट टू it gives a better understanding of the order of the activities. So dummy activity is not real activities को हम सिर्फ ऐड करते हैं to better understand the sequence of activities. Okay, so this is an example of activity or node diagram for Milwaukee paper manufacturing. ठीक है, तो this is a work breakdown structure. ठीक है, तो work breakdown structure basically क्या होता है? It shows, it lists down all the activities which are going to be performed in the project. यानी कि वो सारी एक्टिविटीज मौजूद होंगी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जो हमने एक प्रोजेक्ट में परफॉर्म करनी है. ठीक है, तो एक्टिविटीज के हमारे पास एक्टिविटी है इज बिल्ड इंटरनल कंपोनेंट्स. तो ये बेसिकली पेपर मिल की एग्जांपल है. ठीक है, बी इज मॉडिफाई रूफ एंड फ्लोर, सी इज कंस्ट्रक्ट कलेक्शन स्टैक, डी इज पोर कंक्रीट इंस्टॉल फ्रेम बिल्ड हाई टेम्परेचर बर्नर, फिर एफ इज इंस्टॉल पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, जी इज इंस्टॉल एयर पोल्यूशन, एच इज इंस्पेक्टेड टेस्ट. So we'll start with the start activity. फिर हम आगे एक्टिविटी ए ऐड करेंगे फिर बी ऐड करेंगे. ठीक है, we'll move like this. इस तरह करते करते हमारे पास कुछ फिर एक्टिविटी सी भी आ जाएगी, डी भी आ जाएगी. तो करते करते हमारे इस तरह का एक डायग्राम बन जाएगा. ठीक है, वी स्टार्ट ओवर हियर, फिर एक्टिविटी ए आती है, बी आती है, फिर सी आती है, फिर डी आती है, फिर ई आती है, एफ जी, एंड वी विल एंड एट एक्टिविटी ए. ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में एरोस फ्लो कर रहे हैं हमने बेसिकली उसी डायरेक्शन में मूव करना है. उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. ठीक है, वैसे लेकिन हम जब इस डायग्राम को बनाते हैं तो हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट डायग्राम. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली एक्टिविटी एंड एरो डायग्राम. तो वो जो था आपके पास एक्टिविटी और नोड डायग्राम था. ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी और एरो डायग्राम. So they both the type of diagrams they show the same thing. सिर्फ उनके जो ना डायग्राम में थोड़ा सा फर्क होता है. शो सेम चीज कर देते हैं. और here you can see के ए जो है कौन सी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी का नाम है बिल्ड इंटरनल कंपोनेंट्स. बी की एक्टिविटी का नाम है मॉडिफाई रूफ, फिर सी है कंस्ट्रक्ट स्टैक, फिर आपके पास 3 आ जाती है विच इज अ डमी एक्टिविटी, फिर 4 है बिल्ड बर्नर, फिर 4 कंक्रीट है इंस्टॉल फ्रेम है. Now this activity app which says install controls for install pollution devices, फिर inspect and test. This is the final activity. ठीक है, तो basically we make an activity or node या activity narrow diagram to find out the critical path. ठीक है, तो ये diagrams हम बनाते हैं to do critical path analysis. ठीक है, critical path is the longest path through the network. तो longest path का वैसे मतलब ये होता है कि longest path यानी इसको complete करने में ज़्यादा या maximum time लगता है. ठीक है, but actually the critical path is the shortest time in which the project can be completed. So it is the longest path, but it is the shortest time in which the project. ठीक है, अपनी आसानी के लिए सिर्फ ये याद रखें critical path is the shortest time in which the project can be completed. So any delay in critical path activities delays the project. ठीक है, जो critical path activities है उनमें किसी भी activity में अगर delay होता है तो delay the project. Critical path activities have no slack time. slack time की बात करेंगे. So let's perform a critical path analysis of this same project. ठीक है, तो activity A takes 2 weeks, B takes 3, C takes 2 weeks, D takes 4, E takes 4, F takes 3, G takes 5, H takes 2.
परफॉर्म अ क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, ठीक है। तो सो व्हेन वी आर डूइंग अ क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, तो ये टर्म्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है, बेसिकली इट्स द अर्लीस्ट टाइम एट व्हिच एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट, assuming all previous activities have been completed, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम ES लिखते हैं। फिर earliest finish time, it is the earliest time at which an activity can be finished. फिर latest start time, latest time at which an activity can start so as to not delay the completion time of the entire project. फिर latest finish time, latest time by which an activity has to be finished so as to not delay the completion of the entire project. तो अर्ली स्टार्ट टाइम इज द अर्लीस्ट टाइम जिस पे हम एक एक्टिविटी को शुरू कर सकते हैं। फिर हमारा लेटेस्ट टाइम है एट व्हिच एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में थोड़ा सा फर्क होता है, दे आर नॉट द सेम थिंग। सेम थिंग गोस फॉर अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। इनमें थोड़ा फर्क होता है, दे आर नॉट द सेम, ठीक है। तो जब हम एक सर्कल बनाते हैं तो वी शो ES ऑन द अपर लेफ्ट, ठीक है। अपर लेफ्ट कॉर्नर पे ES को शो करते हैं अर्ली स्टार्ट टाइम, और बीच में जो है एक्टिविटी के सिंबल होते हैं, यानी कि एक्टिविटी ए, बी, है, सी। फिर यहाँ पे अपर राइट पे हमारे पास अर्लीस्ट फिनिश टाइम होता है, जिसको हम EF कहते हैं। फिर लोअर लेफ्ट पे हमारे पास है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और फिर लोअर राइट पे हमारे पास लेटेस्ट फिनिश टाइम। और ये जो टू है स्पेशली शोइंग द एक्टिविटी ड्यूरेशन विच इज द टोटल टाइम या टोटल ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी, यानी कि उस एक्टिविटी को टोटल टाइम कितना लगता है, दैट इज शोन ओवर हियर, ठीक है। सो क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करने के लिए यू कैन फॉलो टू मेथड्स, एक है फॉरवर्ड पास है, दैट द अदर वन इज बैकवर्ड पास, ठीक है। तो फॉरवर्ड पास की पहले बात करते हैं। सो वी बिगिन एट द स्टार्टिंग इवेंट एंड वर्क फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड पास इसलिए कहते हैं, वी बिगिन एट द स्टार्टिंग इवेंट एंड वी वर्क फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। सो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ठीक है। एंड इन फॉरवर्ड यानी कि हम स्टार्टिंग एक्टिविटी से शुरू करते हैं, ठीक है। एंड इन फॉरवर्ड पास अर्ली स्टार्ट टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। हम अर्ली स्टार्ट टाइम्स को देखते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। So earliest start time calculate करने को शुरू में, ठीक है। If an activity has only a single immediate predecessor, its ES equals the EF of the predecessor, ठीक है। यानी कि एक एक्टिविटी से पहले जो एक्टिविटी है, लेट्स से एक एक्टिविटी से पहले अगर कोई और एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो उस एक्टिविटी का जो ES है, यानी कि अर्ली स्टार्ट टाइम, इट विल इक्वल द अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटी। मेक सेंस, ठीक है। यानी कि जिस टाइम पे प्रीवियस एक्टिविटी खत्म होगी, अगली एक्टिविटी उस टाइम पे स्टार्ट होगी। फिर इफ एन एक्टिविटी हैज मल्टीपल इमीडिएट predecessors, ठीक है। यानी कि अगर एक एक्टिविटी से पहले एक से ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, then earliest start time of that activity is the maximum of all the earliest finish times of the predecessors, ठीक है। हम इसको लिखते हैं ES is equal to maximum of EF of all immediate predecessors। फिर earliest finish time है, वो भी एक important चीज है फॉरवर्ड पास में, ठीक है। So earliest finish time of an activity is the sum of its earliest start time and its activity time. So it basically shows the earliest time you can finish an activity. और earliest finish time यानी EF and earliest start time यानी ES, इनके बीच में एक relationship होता है, which is shown by this equation. ठीक है। So earliest finish time of an activity is the earliest start time of an activity plus activity time. Make sense, ठीक है। तो earliest finish time जो है बेसिकली इसके बराबर होगा activity time is the total time which takes an activity to complete, यानी कि the total time it takes for to the total time to perform an activity, ठीक है। या total time it takes to perform an activity, that is called activity time, ठीक है। earliest time is the earliest time an activity can start, ठीक है। यानी कि किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम ले लें, उसमें टोटल टाइम ऐड कर दें जितना उस एक्टिविटी पे लगता है, तो हमारे पास अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाता है, ठीक है। जो आपकी स्टार्ट की एक्टिविटी होती है उसमें आपके पास ES भी जीरो आएगा और EF विल आल्सो भी जीरो, उसकी ड्यूरेशन भी जीरो होगी, ठीक है। बिकॉज स्टार्ट की जो एक्टिविटी इट्स नॉट अ रियल एक्टिविटी, ठीक है, उसको हम सिर्फ ऐड करते हैं,
for the purpose कि हमारे पास एक start point हो. Okay, so let's look at these. ठीक है, so this is a node diagram. ठीक है, activity और node diagram. ठीक है, तो we start with the start activity. Start activity हम अपनी तरफ से बनाते हैं, it's not an actual activity, इसलिए इसमें सारे टाइम्स जो है जीरो है. ES हो गया, EF हो गया, और एक्टिविटी टाइम इज जीरो. So A is the first activity actually. स्टार्ट के बाद फिर हमारे पास एक्टिविटी ए आती है, उसका आप देख सकते हैं ES is 0, EF is 2 और एक्टिविटी ड्यूरेशन is 2. ठीक है, फिर एक्टिविटी सी आ जाती है. ठीक है, तो यू कैन सी जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है ऑफ एक्टिविटी सी, इट्स इक्वल, sorry, earliest start time of activity C, it is equal to the earliest finish time of activity. ठीक है, so activity C का जो earliest start time है, that will equal the earliest finish time of an activity A. तो यहाँ भी ऐसे ही स्टार्ट एक्टिविटी एक्टिव, उसके बाद एक्टिविटी ए है, फिर बी है, फिर सी है. ठीक है, अच्छा, एक्टिविटी डी कम्स आफ्टर एक्टिविटी सी. ठीक है, इसको आगे चल के देखते हैं. हाँ ठीक है, सो एक्टिविटी डी जो है वो बेसिकली यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम. ठीक है, हमारे पास स्टार्ट है, फिर एक्टिविटी ए, एक्टिविटी ए के बाद सी आती है, और एक्टिविटी ए के बाद एक्टिविटी डी भी आ रही है. ठीक है, इट्स नॉट अ कंप्लीट डायग्राम. ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि सी के बाद डी आता है कि डी इज सेपरेट एक्टिविटी. ठीक है, नीचे से पता लगेगा. यानी कि सी और डी के बीच में भी रिलेशनशिप. बट यू कैन सी फ्रॉम द एरोस कि एक्टिव स्टार्ट एक्टिविटी के बाद एक्टिविटी ए आ रही है, इसी तरह स्टार्ट एक्टिविटी के बाद एक्टिविटी बी आती है. ठीक है, फिर ए एंड बी जब कंप्लीट होते हैं, फिर एक्टिविटी डी शुरू हो जाती है. ठीक है, सो एक्टिविटी ए और डी के बीच में एक रिलेशनशिप है, और बी और डी के बीच में रिलेशनशिप. सो बिफोर एक्टिविटी डी वी हैव टू एक्टिविटीज व्हिच नीड टू बी कंप्लीटेड. ठीक है, तो ये जो एरो पॉइंट कर रहा है ना इन द डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटी डी, इट बेसिकली शोज कि एक्टिविटी ए हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर एक्टिविटी डी कैन स्टार्ट. सेम गोज फॉर एक्टिविटी बी. ठीक है, एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स डी फ्रॉम बी. ठीक है, बी से डी तक एक एरो पॉइंट कर रहा है. इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी बी पहले कंप्लीट होगी तो एक्टिविटी डी शुरू होगी. ठीक है, बिकॉज एक्टिविटी डी जो है बी और ए के बाद में आ रही है अकॉर्डिंग टू द एरोज, which basically means कि A and B have to be completed before activity D starts. ठीक है, so that means कि activity D से पहले दो activities perform हो रही है, वो दोनों खत्म होगी तो activity D शुरू होगी. ठीक है, तो because activity D से पहले दो activities हैं, so you can see over here कि आपके पास जो earliest start time of activity D, it will be the highest value of the start times of A and B. ठीक है, यानी कि एक्टिविटी डी से पहले जो दो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, उनमें से जिस एक्टिविटी का जो हाईएस्ट earliest finish time होगा, that will be the earliest start time of activity D. ठीक है, and that is 3. ठीक है, A का EF 2 है, B का EF 3 है. ठीक है, अब मैंने बताया था the earliest start time of an activity is equal to the earliest finish time of the previous activity. ठीक है, यहाँ पे because दो previous activities हैं, तो we will take the highest value of the previous. So this is the complete diagram. ठीक है, मिलवाकी पेपर मिलकर complete activity on node diagram. So from here you can see कि
It basically ends at activity H. Again, अगर आप देखें तो early start time of an activity H is the maximum of 7 and 13. ठीक है, लेकिन अगर आप activity C का early start time देखें, it is exactly equal to the earliest finish time of A. इसका भी जो E S है, it's exactly equal to the E F of B. ठीक है, तो हम बैकवर्ड पास का भी यूज करते हैं क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। बैकवर्ड पास में क्या होता है, वी मूव बैकवर्ड्स। ठीक है, इसलिए हम वी स्टार्ट विद द लास्ट वन एंड मूव बैकवर्ड्स, यानी कि जो लास्ट एक्टिविटी उससे हम शुरू करते हैं, वी मूव बैकवर्ड्स। फॉरवर्ड पास में क्या होता है, हम स्टार्ट से शुरू करते हैं एंड वी मूव राइटवर्ड्स। बैकवर्ड पास में क्या होता है, हम लास्ट एक्टिविटी शुरू करते हैं, मूव बैकवर्ड्स। ठीक है, सो बैकवर्ड पास में वी आर मोर कंसर्न विद द लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। Latest finish time which rules that if an activity is an immediate predecessor for just a single activity, its LF equals LS of the activity that immediately follows it. If an activity is an immediate predecessor to more than one activity, its LF is the minimum of all LS of all activities that immediately follow. The latest start time and latest start time और latest finish time के बीच में जो relationship है, that is LS is equal to LF minus activity. Okay. Okay, so this is the activity node diagram. तो इस वाले डायग्राम में आपको सिर्फ एक एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम दिया। ठीक है, सो द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी एच इज 30, ये नीचे वाला होता है दिस वन। ठीक है, एंड द लेटेस्ट फिनिश टाइम इज 15। ठीक है, सो लोअर लेफ्ट पे जो होता है दैट इज योर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, एंड जो आपका लोअर राइट है दैट इज योर लेटेस्ट फिनिश टाइम। So from here you can see that LS is equal to LF minus activity, यानी कि 13 is equal to 15 minus 2. ठीक है, अगर आप एक्टिविटी एफ को देखें, एक्टिविटी एफ इज फॉलोड बाय ओनली वन एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी एफ के पास सिर्फ एक्टिविटी ए जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसका जो एल एफ है, ठीक है, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एल एस ऑफ द नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि दिस एल एफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू एल एस ऑफ एज, यानी कि 13 सेम। अगर आप एक्टिविटी सी को देखें, एक्टिविटी सी के बाद दो एक्टिविटीज आ रही हैं। ठीक है, एफ एंड ई। ठीक है, तो एक्टिविटी सी का जो एल एफ है, इट विल बी द minimum of the LS of these two activities। ठीक है, इन दो एक्टिविटीज का जो मिनिमम LS होगा दैट विल बी द LF ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो F का जो LS है वो 10। ठीक है, और E का जो LS है वो 4 है। ठीक है, जाहिर है इनमें से 4 छोटा है, तो LF will be equal to the minimum of 4 and 10 which will be 4। Okay, so once we have completed ES, EF, LS, and LF times for all activities, we need to compute the slack time for each activity. Slack is the length of time an activity can be delayed without delaying the entire.
Slack is equal to ls minus es or lf minus en. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सारी एक्टिविटीज के अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी दिए हुए हैं, अर्लीस्ट फिनिश टाइम भी दिए हुए हैं, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भी दिए हुए हैं और लेटेस्ट फिनिश टाइम भी दिए हुए हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने स्लैक टाइम भी कैलकुलेट किया हुआ फॉर एवरी एक्टिविटी, ठीक है। So you can see for activity A, slack time is 0, and for activity C also slack time is 0. G for activity G as well slack time is 0, and activity H पे भी slack time is 0, ठीक है। So for all those activities जिनका slack time 0 है, those activities fall on the critical path, ठीक है। And critical path क्या था? It's basically that path जिसको अगर हम follow करें, we will be able to complete the project in the shortest time possible. ठीक है, तो ये जो highlighted arrows हैं, they show the critical path for this, ठीक है। A से हमने जाना E की तरफ, E से G की तरफ, G से, ठीक है। तो if you basically follow this path, this is the critical path. So ये Gantt chart दिया है for Milwaukee Brewers. यहाँ से you can see कि ये जो install air pollution device, it takes a lot of time, ठीक है। So this is number of weeks I think, या number of days जो भी है। So 9th से शुरू होता है, 13 तक जाता है, takes a lot of time. ये 5 से शुरू होता है, 8 तक जाता है, ठीक है। ये 9 से शुरू होता है, 13 तक जाता है। So CPM basically assumes we know a fixed time estimate for each activity and there is no variability in activity. तो ये मेजर assumption है जो हम critical path method में करते हैं, ठीक है। So again CPM assumes we know a fixed time estimate for each activity and there is no variability in activity. Activity time is basically we are referring to the duration. So activity duration कहते हैं, same. ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। हम इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्लाइड नंबर नोट कर लें, सब टू स्लाइड 74, ठीक है। स्लाइड्स थोड़ी ज़्यादा इसलिए, ये बहुत बड़ी बड़ी स्लाइड्स हैं, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसमें, अदरवाइज कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, मैं आपको बुक से भी एग्जांपल दे देता हूँ, सीपीएम को समझने के लिए देर एन एग्जांपल फ्रॉम द बुक, यू कैन रीड इट, ठीक है। या तो आप स्लाइड के एग्जांपल को समझ लें या बुक को समझ लें, दैट एनीवन, कोई भी कर लें आप, ठीक ठीक है। ये एक एग्जांपल है आपकी बुक में, इट्स ऑन पेज नंबर, बुक मैंने अपलोड की हुई है आज से, अगर नहीं की तो मुझे रिमाइंड, पेज 61 पे, ठीक है। Just read this example. डायग्राम बनाना है तो इम्पोर्टेंट नहीं, आई थिंक आपको बनाना पड़ेगा, बट अगर आपको बना बनाया दिया हो, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चन सो फॉर? नो क्वेश्चन?
ठीक है, if you don't have any questions फिर end करते हैं इसको. ठीक है, so we'll end the lecture. Alright then, thank you. ठीक है, this is the end of the lecture. ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर लेना. ठीक.